Okay. Next is power to levy taxes. Next is 1.3 is power to levy taxes. Power to levy taxes. Power to levy taxes. Okay. The Constitution of India in Article 265, in Article 265 lays down no tax shall be levied. In 265 lays down no tax shall be levied or collected except by the authority of law. In Article 265, in what article? In 265 of the Constitution of India lays down no tax shall be levied. No tax shall be levied or collected. No tax shall be levied or collected except by authority of law. Except by authority of law. No tax shall be levied or collected except by authority of law. No tax shall be levied or collected, levied or collected except by authority of law. Okay. Accordingly, for levy of any tax, a law needs to be framed by the government. A law needs to be framed by the government. A law needs to be framed by the government. Okay. In previous class, we take Article 23628. We read Article 366, Article 36628, Article 36628 of the Constitution of India, which defines the term taxation as follows. Taxation includes the imposition of any tax. Taxation includes the imposition of any tax or imposed, whether general or special, whether general or local or special, and tax shall be constructed accordingly. Okay. In Article 36628, taxation includes the imposition of any tax, or imposed, whether general or local or special, and tax shall be constructed accordingly. Understand? But in Article 265 lays down no tax shall be levied, no tax shall be levied or collected, no tax shall be levied or collected except by authority of law, except by authority of law. No tax shall be levied or collected, no tax shall be levied or collected, no tax shall be levied or collected except by authority of law. Okay. Accordingly for levy of any tax, a law needs to be framed by government. A law needs to be framed by whom? Government, by the government. A law needs to be framed by the government. A law needs to be framed by the government. Constitution of India gives the power. Constitution of India gives the power to levy and collect tax. Constitution of India gives the power to levy and collect tax, whether direct or indirect, to the central and the state government, both the government. Okay. Constitution of India gives the power to levy and collect tax. Levy and collect tax. Constitution of India gives the power to levy and collect tax, whether direct or indirect, to the central and the state government, Understand? To the central and the state government. Constitution of India gives the power to levy and collect tax, whether direct or indirect, to the central and the state government. The parliament and the state legislature are empowered to make laws. The parliament and the state legislature are empowered to make laws on the matters on the parliament and the state legislature are empowered to make laws on the matters enumerated in the seventh schedule by virtue of Article 246 by virtue of Article 246 of the Constitution of India. One article is 265, another is 246. Now the seventh schedule. Okay. Constitution of India gives the power to levy and collect taxes, whether direct or indirect, to the central and the state government. The parliament and the state legislature are empowered to make laws on the matters enumerated in the seventh schedule by virtue of Article 246. What is the meaning of virtue? VIRTUE. Gun. सदाचार गुण भलाई. Virtue.
Virtue. VIRTUE. VIRTUE. Virtue in Article 1 of the Constitution. Oh, Anuच्छेद 1 की गुण. Okay. By virtue of Article 246 of the Constitution of India. Okay. 7th schedule to Article 246. 7th schedule to Article 246. 7th schedule to Article 246. 7th schedule to Article 246 contains three lists. Contains three lists. 7th schedule to Article 246 contains three lists which enumerated the matters under which 7th schedule to Article 246 contains three lists. Contain three lists which enumerated the matters under which the parliament and the state legislature have the authority to make laws for the purpose of levy of taxes. Okay. 7th schedule of 7th schedule to Article 246 contains three lists which enumerated the matters under which the parliament and the state legislature have the authority to make laws for the purpose of levy taxes. The following are the list: union list, state list, concurrent list. Understand? Article 246, 7 schedule to Article 246, 7 schedule to Article 46 contain three lists which enumerate matters under which the parliament and the state legislature have the authority to make laws, have the authority to make laws for the purpose of levy of tax, for the purpose of levy of tax, for the purpose of levy of tax. The following are the list: union list, state list, concurrent list. Union list, state list, concurrent list. Union list, state list, concurrent list. Understand? Union list. Parliament has the exclusive power to make laws. Parliament has the exclusive power to make laws on the matters contained in union list. Parliament has the exclusive power. Parliament has the exclusive power to make laws. Parliament has the exclusive power to make laws on the matters contained in union list. Okay. Then state list. The legislature of any state, has the exclusive power to make laws on the matters contained in the state list. State list, the legislature of any state. The legislature of any state has the exclusive power, to make laws, on the matters contained in the state list. Then concurrent list, both parliament and state legislature, have the power to make laws on the matters contained in the concurrent list. Both parliament and state legislature, have the power to make laws, on the matter contained in the concurrent list, on the matters contained in the concurrent list. Three list: union list, state list, and concurrent list. Both parliament and state legislature have the power to make laws on the matters contained in the concurrent list. Understand? Income tax is the most significant direct tax. Income tax is the most significant direct tax. Income tax is the most significant. Income tax is the most significant direct tax. Income tax is the most significant direct tax. Entry 82 of the union list. Which list? Union list. Entry 82 of the union list. That is list 1 in the 7th schedule. To Article 246 of the Constitution of India. Understand? Income tax is the most significant direct tax. Entry 82 of the union list. Entry 82 of the union list. That is list 1 in the 7th schedule. To Article 246. Of the Constitution of India. Has given the power to the parliament. To make laws. On taxes. On income. Other than agriculture income. Important is make laws on taxes. On income other than agriculture income. Understand?
Income tax is the most significant direct tax. Income tax is the most significant direct tax. Entry 82 of the union list. Entry 82 of the union list. That is list one in the seventh schedule. That is list one in the seventh schedule to Article 246 of the Constitution of India has given the power to the Parliament. Has given the power to the Parliament. Has given the power to the Parliament to make laws on taxes on income, to make laws taxes on income other than agriculture income, other than agriculture income, other than agriculture income. Understand? The next is overview of income tax law in India. Overview of income tax law in India. ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। जरा एक बार पहली क्लास में चलते हैं, वहां पे और भी चीजें थी ना इसके अलावा। देखो पहले वाले पेज पर आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखना कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, लीगल डिसीजंस। ओके, 1.5 overview of income tax law in India. Overview of income tax law in India. In this material, we would introducing the student to the income tax law in India. Income tax law in India. The income tax law in India consists of the following components. The income tax law in India consists of the following components. The income tax law in India consists of the following components. Okay. So components of income tax law. Components of income tax law. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. How many components? 5 components. Components of income tax law. Income Tax Act, Income Tax Act, Annual Finance Act, Annual Finance Act, Income Tax Rules, Income Tax Rules, Circulars and Notification, and legal decisions of court. Last is legal decision of courts. First one is Income Tax Act, then Annual Finance Act, then Income Tax Rules, then Circulars and Notification, then legal decisions of court. Understand? The components of income tax law is 5. Income Tax Act, Annual Finance Act, Income Tax Rules, Circulars and Notification, then legal decisions of court. Income Tax Act, Annual Finance Act, Income Tax Rules, Circulars and Notification, then legal decisions of court. Okay. The various instruments of law containing the law relating to the income tax are explained below. Okay. The first one is the Income Tax Act 1961. Income Tax Act 1961. Income Tax Act 1961. The levy of income tax in India. The levy of income tax in India. The levy of income taxes in India is governed by the Income Tax Act 1961. The levy of income tax in India is governed by the Income Tax Act 1961. The levy of income tax in India is governed by the Income Tax Act 1961. Okay, understand? The levy of income tax in India is governed by the Income Tax Act 1961. In this book, we shall briefly refers to this as follows. Is this as the act. The levy of income tax in India is governed by the Income Tax Act 1961. In this book, we shall briefly refer to this act as this act. It extends to the whole of India. It extends to the whole of India. Understand? It extends to the whole of India. It extends to the whole of India. It came into force on 1st April 1962. It came into force on 1st April 1962. It came into force on 1st April 1962. It extends whole of India. Then it contains section 1 to 98. 298. Section 1 to 298 and schedule 1 to 14. Section 1 to 14. How many schedule? How many schedule? 1 to 14. And how many section 1 to 298? Understand? तो यहाँ से हमने भैया देखो 3 बातें सीख ली है। थोड़ा सा जरा हिंदी में भी बात कर लेते हैं। एक तो हमने जब बात सीखी इनकम टैक्स एक्ट 1961। The levy of the income tax in India is governed by the Income Tax Act 1961. In this book, we shall briefly refers to this as the act. First one is it extend to the whole of India. It extend to the whole of India.
Then it came into force on 1st April 1962. It came into force on 1st April 1962. Section 1 to 298, Section 1 to 298, and Schedule 1 to 14. Okay. Then a section may have a subsection or clauses and sub clauses. Okay, वो क्या बोल रहे हैं कि भैया सेक्शन में भैया सबसेक्शन भी हो सकते हैं, क्लॉजेस भी हो सकते हैं और सब क्लॉजेस भी हो सकते हैं. A section may have subsection or clauses and sub clauses. आ रही बात समझ में क्या बोल रहे हो? तो वो बोल रहे हैं कि भैया सेक्शन में क्या क्या हो सकते हैं. आ सेक्शन में है सबसेक्शन, सबसेक्शन हो सकते हैं, क्लॉजेस हो सकते हैं और सब क्लॉजेस हो सकते हैं. अंडरस्टैंड? A section may have subsection clauses और सब clauses. मैं तुमसे पूछ लूं कि भैया क्या पूरे भारत में लगता है, तो आप बोलोगे हाँ जी भैया. इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया. इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st अप्रैल 1962. और यहाँ पे सेक्शन कितने हैं? 1 to 298 और शेड्यूल कितने हैं? 1 to 14. ठीक है. फिर वो कह रहे हैं कि भैया सेक्शन में सबसेक्शन हो सकते हैं, क्लॉजेस हो सकते हैं और सब क्लॉजेस हो सकते हैं. इसी सेक्शन में सबसेक्शन भी हो सकते हैं, क्लॉजेस भी हो सकते हैं और सब क्लॉजेस भी हो सकते हैं. कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है. When each part of the section is independent of each other. ध्यान से समझना. When each part of section is independent of each other and one is not related with other, such part is called clause. तो क्लॉज के लिए क्या बात बोली गई यहाँ पे? अब मैं पूछूं भैया क्लॉज क्या होगा, तो आपको पे शब्द याद रखना है इंडिपेंडेंट. ध्यान से इस चीज को समझो. क्या बोला हुआ? क्या बोला हुआ? व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन, की सेक्शन के मान लो 10 पार्ट हो, 10 के 10 पार्ट एक दूसरे से अलग है, इज इंडिपेंडेंट है. व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन इंडिपेंडेंट है किससे? हर एक दूसरे पार्ट से. ईच अदर एंड वन इज नॉट रिलेटेड विद अदर, एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं है, तो हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे. याद रखना. व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन इज इंडिपेंडेंट, व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड one is not related with other, and one is not related with other, such part is called clause. Such parts is called as a clause. क्या मानेंगे हम? उसे clause बोलेंगे. ठीक है. Then subsection on the other hand refers to such part of the section where each part is related with other, and all subsection taken together completes the concept of propounded in the section. अब subsection के बारे में क्या बात हो रही है? Subsection on the other hand refers to such part of the section where each part is related with other. ये लो. तो क्लॉज में याद रखना इंडिपेंडेंट. याद रखना कि मान लेते हैं किसी सेक्शन में 10 बातें कहेंगी, और 10 बात मतलब किसी सेक्शन में 10 पार्ट है और 10 के 10 पार्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो हम उनको क्या बोलेंगे भैया? क्लॉज बोलेंगे. समझ में आ गई बात? और बोल रहे कि अगर वो बोल रहे कि सब सेक्शन क्या होता है कि ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू सच पार्ट ऑफ द सेक्शन वेयर ईच पार्ट इज रिलेटेड विद ईच अदर, जहाँ पे एक पार्ट दूसरे पार्ट से क्या है? रिलेटेड है. सच पार्ट ऑफ अ सेक्शन वेयर ईच पार्ट इज रिलेटेड विद अदर, हर एक पार्ट एक दूसरे से क्या है भैया? रिलेटेड है. एंड ऑल सेक्शंस एंड ऑल सबसेक्शंस टेकन टुगेदर कंप्लीट्स द कांसेप्ट प्रोपाउंडेड इन द सेक्शन. मतलब जो सेक्शन में बात करी गई है अगर उसको समझना है तो सारे के सारे सबसेक्शन को एक साथ पढ़ लो. क्लॉज समझ में आ गया? इंडिपेंडेंट याद रहेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं अगर सबसेक्शन के बारे में बात करूं तो बोल सकते हो ना, सच पार्ट ऑफ द सेक्शन वेयर ईच पार्ट इज रिलेटेड विद ईच अदर. इससे पहले इट एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, ये समझ लिया आपने. 1 अप्रैल 1962 आपने समझ लिया. इट कंटेन सेक्शन 1 to 298 और शेड्यूल 1 से लेकर 14 तक. ठीक है. अच्छा, आगे देखते. एग्जांपल देखो यहाँ पर. अब एग्जांपल देखना बुक में क्या दिया हुआ है. एग्जांपल दिया हुआ है द क्लॉजेस ऑफ सेक्शन 2. जैसे आपने यहाँ पे देखा ना क्लॉजेस, जैसे क्या देखा आपने यहाँ पे? क्लॉजेस. तो क्लॉजेस में वर्ड याद रखना क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट वर्ड याद रखना. ठीक है. क्लॉजेस के साथ क्या बोलोगे? इंडिपेंडेंट. ठीक है. तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. द क्लॉजेस ऑफ सेक्शन 2. किसका? द क्लॉजेस ऑफ सेक्शन 2. कौन सा सेक्शन की बात हो रही है? सेक्शन 2 के हम क्लॉजेस को हम समझ रहे हैं. डिफाइंस द मीनिंग ऑफ टर्म्स यूज्ड इन द इनकम टैक्स. सेक्शन 2 क्या बताता है? यहाँ पे ये चीज भी याद कर लो भैया. सेक्शन 2 क्या बताता है तुमको? सेक्शन 2 बताता है मीनिंग ऑफ टर्म यूज्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के. भैया 1961 में हमने जितने टर्म्स का इस्तेमाल करा है उसके बारे में बात करता है. कौन? सेक्शन 2. समझ में आ गया? सेक्शन 2 कोई पूछ ले भैया किस चीज के बारे में बात करेगा, तो मीनिंग ऑफ टर्म्स यूज्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961. कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर मैं उसकी क्लॉजेस के बारे में बात करूं तो जैसे हमने क्लॉज देखा तो आपको समझ में आ गया कि भैया सेक्शन 2 में जितनी बातें लिखी गई होंगी वो सब अलग अलग होंगे. तो फिर मीनिंग ऑफ टर्म्स यहाँ पर आप समझो. जैसे 1A है, जैसे क्लॉज 1A है तो डिफाइन क्या करता है? एग्रीकल्चर के इनकम को डिफाइन करेगा. समझ में आया? सेक्शन 2 का जो क्लॉज 1A है, सेक्शन 2 का जो क्लॉज 1 है वो एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन करता है. 1B अमलगमेशन को डिफाइन करता है. इस तरीके से अब आई बात समझ में? ईच वन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट. क्या है? सबके सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ऑफ अदर्स क्लॉज ऑफ द सेम सेक्शन. ठीक है. सेक्शन तो एक ही है, सेक्शन तो सबका भैया 2 ही है.
उस सेक्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ द टर्म, जो भी टर्म इस्तेमाल होती है वो कहाँ पर, इनकम टैक्स एक्ट 1962 में उनकी मीनिंग लिखी हुई है। जैसे क्लॉज 1A में क्या लिखा हुआ था, एग्रीकल्चर इनकम, 1B में क्या लिखा हुआ था, अमलगमेशन, इस तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं हो, सबके सब एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, सबके सब एक दूसरे से क्या है भैया, इंडिपेंडेंट है। क्लियर हो रही है बात, क्लॉज समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लाइक वाइज द क्लॉज ऑफ सेक्शन 10 को भी समझो। सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है, क्लॉज समझ गए, दिमाग में क्या आना चाहिए, क्लॉज समझते साथ इंडिपेंडेंट, क्लॉज समझते साथ क्या आना चाहिए, इंडिपेंडेंट। में किसकी बात करूँ, सेक्शन 10 की। तो जो सेक्शन 10 के क्लॉजेस है उसमें क्या लिखा हुआ है, कंटेन्स एग्जेम्पशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। एग्जेम्पशंस के बारे में बात करी गई है किसमें, सेक्शन 10 में। तो उसके जो क्लॉजेस है उसको हम देखते हैं। जैसे वहां पे क्लॉज 1 था, तो क्लॉज 1 हमको क्या बताता है, प्रोवाइड फॉर एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। क्लॉज 1 का के बारे में बताता है, एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, समझ में। क्लॉज 2 किसके बारे में बताता है, एग्जेम्पशन ऑफ शेयर इनकम ऑफ अ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इस तरीके से। अब क्लियर हो गया। तो भैया जैसे मैं क्लॉज बोलूं दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट आ जाना चाहिए। समझ में आया। सेक्शन 10 किसके बारे में बताता है, एग्जेम्पशंस के बारे में बताता था। सेक्शन 2 का के बारे में बात कर रहा था, टर्म्स यूज्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर। क्लॉजेस समझ में आ गए, पक्का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सेक्शन नंबर 5 पर क्या है, सेक्शन नंबर 5 डिफाइंस द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन नंबर 5 क्या बताता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम बताता है, जहाँ पे 2 सब सेक्शन है, वहाँ पे 2 सब सेक्शन है, एक सब सेक्शन ए है और एक 2 है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सेक्शन 5 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बताता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जहाँ पे 2 सब सेक्शन, एक सब सेक्शन 1 और एक सब सेक्शन 2 है। एक सब सेक्शन नंबर 1 है, दूसरा कौन सा है, दूसरा 1 एंड 2। सब सेक्शन 1 किसके बारे में बात करता है, डिफाइंस द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ अ रेजिडेंट, एंड सबसेक्शन 2 किसके बारे में बात कर रहा है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट। समझ में आती बात। सेक्शन नंबर 5 याद रखना, सेक्शन नंबर 5 किसके बारे में बात कर रहा है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में बात कर रहा है। वहां पे 2 सब सेक्शन है, और सब सेक्शन के बारे में देखो, यहाँ पे मैंने लाइन तुमको क्या बताई थी, कि ऑल सब सेक्शन, ये such part of a section where each part is related with each other, each part is related with each other, and all subsection taken together completes the concept propounded in that section, okay। तो यहाँ पर देखना भैया क्या बोला गया भैया, सेक्शन 5 को यहाँ पे कहा गया, सेक्शन 5 पर देखो, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, जो सेक्शन 5 को डिफाइन क्या करता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम को डिफाइन करता है। किसको करता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम को। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 सब सेक्शन है, एक सब सेक्शन 1 है, एक सब सेक्शन 2 है। सब सेक्शन 1 में क्या बात करी गई है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ रेजिडेंट, रेजिडेंट की टोटल इनकम के बारे में बात करी गई, कहाँ पर, सब सेक्शन 1 में। और सब सेक्शन 2 में क्या करता है, वो भी स्कोप ऑफ टोटल इनकम बता रहा है, लेकिन किसकी, नॉन रेजिडेंट की। आप समझ में आ गया, ठीक है। ईच सबसेक्शन इज रिलेटेड विद ईच अदर्स, हर एक सबसेक्शन एक दूसरे से क्या है भैया, रिलेटेड है, इन द सेंस दैट ओनली व्हेन वन रीड्स देम ऑल, जब उन दोनों को एक साथ रीड करा जाएगा तब आपको पूरे सेक्शन का सेंस समझ में आएगा। वन गेट्स द कंप्लीट आइडिया रिलेटेड टू द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो यहाँ पे याद भी कर लो, अगर आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम को जानना है तो कौन सा सेक्शन पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 5। कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 5। कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 5 किस चीज का है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम का। किस चीज का है भाई, स्कोप ऑफ टोटल इनकम का। जहाँ पे कितने सब सेक्शन है, 2 सब सेक्शन, एक सब सेक्शन 1 है और एक कौन सा है, 2 है। समझ में। 1 किसके बारे में बात करता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ अ रेजिडेंट, रेजिडेंट की टोटल इनकम के बारे में बात करेगा कौन, सेक्शन नंबर 1। सॉरी, सब सेक्शन 1 किसके बारे में बात करेगा, टोटल इनकम ऑफ अ रेजिडेंट। सब सेक्शन 2 किसके बारे में बात करेगा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। क्लियर हो गई बात, कैसे करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी सेक्शन में भैया प्रोविजो भी हो सकते हैं और एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं, दो और चीजें आ गई। किसी सेक्शन में भैया प्रोविजोस भी हो सकते हैं और एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं। क्या, प्रोविजोस भी हो सकते हैं और एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं। समझ में आई बात। किसी सेक्शन में प्रोविजोस भी हो सकते हैं और एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द प्रोविजोस टू अ सेक्शन और सबसेक्शन क्लॉज स्पेल आउट exemptions conditions to the provisions contained in the respective section. Subsection clause, that is the provisions spell out in the cases where the provisions contained in the respective section, subsection clause would not apply, where the provision would apply with certain modification। ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझो। देखो किसी सेक्शन में प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन दोनों हो सकते हैं। मैंने तुमसे बात कही, देखो सेक्शन में क्लॉजेस भी हो सकते हैं, और क्लॉजेस को समझ के तुमको इंडिपेंडेंट वर्ड पे ध्यान देना है। और जब मैं सब सेक्शन की बात कर रहा था तो तुमने कहा कि भैया उन सबको एक साथ देखना है। यहाँ पे 2 चीजें आ सकती है, क्या आ सकती है भैया, प्रोविजोस भी आ सकते हैं और एक्सप्लेनेशन भी आ सकते हैं। क्या, प्रोविजोस भी और एक्सप्लेनेशन दोनों चीजें आ सकती है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोविजो है किसका, वो सेक्शन का भी हो सकता है। प्रोविजो जो है वो सेक्शन का भी हो सकता है
वो सबसेक्शन का भी हो सकता है, वो क्लॉज का भी हो सकता है। प्रोविजो भैया किसी का भी हो सकता है, सेक्शन का, सबसेक्शन का और क्लॉज का, किसी का भी, मतलब तीनों में हो सकते हैं। सेक्शन में भी, सबसेक्शन में भी और क्लॉज में भी। समझ में आया? प्रोविजोस किस में हो सकते हैं भैया? सेक्शन में भी, सबसेक्शन में भी और क्लॉज में भी। स्पेल आउट द एग्जेम्पशंस, किसके बारे में बात करते हैं? एग्जेम्पशंस के बारे में बात करते हैं या कंडीशंस के बारे में बात करते हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? एग्जेम्पशंस के बारे में बात कर रहे हैं या कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि उस प्रोविजन की एग्जेम्पशन क्या है या फिर वहां पे कंडीशन क्या है। समझ में आई बात? मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से इस चीज को समझना कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्रोविजो की, भैया प्रोविजो क्या होता है? किसी सेक्शन में अगर कोई प्रोविजो है या सब सेक्शन में है या फिर क्लॉज में, ध्यान से समझो, किसी भी सेक्शन में या फिर सब सेक्शन में या क्लॉज में अगर कोई प्रोविजो है तो किसके बारे में बात कर रहा है? वो स्पेल आउट किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है एग्जेम्पशंस के बारे में या कंडीशंस के बारे में। किसके बारे में? एग्जेम्पशंस के बारे में या कंडीशंस के बारे में। किसके बारे में? एग्जेम्पशंस के बारे में या कंडीशंस के बारे में। कुछ एग्जेम्पशंस हो सकती हैं, कुछ कंडीशंस हो सकती है उस प्रोविजन से related to the provisions contained in the respective section, subsection or clause. समझ में आया? That is the proviso spell out the cases where the provisions contained in the respective section, subsection, clause would not apply. ये देखो क्या लिखा हो, would not apply, और where the provisions would apply with certain modification। ये याद कर लो भैया, ये इंपॉर्टेंट है। would not apply या तो अप्लाई नहीं होगा, ये लो, समझ में आया? वुड नॉट अप्लाई और वियर द प्रोविजंस वुड अप्लाई विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। या तो भैया अप्लाई ही नहीं होगा, वुड नॉट अप्लाई, या तो अप्लाई ही नहीं होने वाला, और या फिर प्रोविजंस अप्लाई तो होगा, वुड अप्लाई, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ होगा। समझ में आई? फिर से बात बताता हूँ, देखो किसी सेक्शन में प्रोविजोस हो सकते हैं, एक्सप्लेनेशंस हो सकती है। क्या हो सकती है भैया? प्रोविजोस हो सकते हो, एक्सप्लेनेशंस हो सकती है। वो कह रहे हैं कि अगर भैया किसी सेक्शन में, सबसेक्शन में या फिर क्लॉज में, अगर किसी सेक्शन में, सबसेक्शन में या फिर क्लॉज में प्रोविजोस हैं तो किसके बारे में बात करेगा? वो बात करेगा एक्सेप्शंस के बारे में, एक्सेप्शंस के बारे में या कंडीशंस के बारे में। किसके बारे में? एक्सेप्शंस के बारे में या कंडीशंस के बारे में। क्लियर हो रहा है? अगर भैया किसी सेक्शन में, सबसेक्शन में, क्लॉज में, अगर किसी सेक्शन, सबसेक्शन या क्लॉज में क्या है भैया, प्रोविजोस है, तो किसके बारे में बात करेंगे? एग्जेम्पशंस के बारे में बात करेंगे या कंडीशंस के बारे में बात करेंगे? टू द प्रोविजंस कंटेन इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन, सबसेक्शन और क्लॉज, दैट इज द प्रोविजो स्पेल आउट द केसेस। किसके बारे में बता रहा है? स्पेल आउट द केसेस वेयर द प्रोविजंस कंटेन इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज वुड नॉट अप्लाई, या तो वो अप्लाई ही नहीं होंगे भैया। वुड नॉट अप्लाई या तो वो अप्लाई ही नहीं होंगे, या फिर वो अप्लाई होंगे वेयर द प्रोविजंस वुड अप्लाई विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। समझ में आया? दो चीजें, या तो वो अप्लाई ही नहीं होने वाले, और या फिर वो प्रोविजंस अप्लाई तो होंगे लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ होंगे। समझ में आया? एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लो, इस सेक्शन का, सबसेक्शन, इस क्लॉज का एक्सप्लेनेशन देखो क्या होता है। एक्सप्लेनेशन क्लॉज गिव्स द क्लेरिफिकेशन। देखो दो चीज थी ना, तो प्रोविजंस था, या तो प्रोविजो थे या फिर क्या थे? एक्सप्लेनेशंस थे। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? द एक्सप्लेनेशन टू द सेक्शन, सबसेक्शन और क्लॉज गिव्स द क्लेरिफिकेशन, क्लेरिफिकेशन रिलेटिंग टू द प्रोविजंस कंटेन इन रिस्पेक्टिव सेक्शन, सबसेक्शन और क्लॉज। तो यहाँ पर तो भैया क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा क्लेरिफिकेशन। ये लो, इस तरीके से समझ में आया? तो प्रोविजंस में समझ गया, जो मैं प्रोविजो में दो चीज तुमको बता दी मैंने, क्या क्या बता दी? एक्सेप्शंस और कंडीशंस बता दी। वुड नॉट अप्लाई और वियर द प्रोविजंस वुड अप्लाई विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। और जब मैं एक्सप्लेनेशन में बात कर रहा हूँ, किसमें? सेक्शन में हो सकता है, सबसेक्शन, क्लॉज किसी में भी हो सकता है। तो किसके बारे में बात करेगा? क्लैरिफिकेशन के बारे में बात करेगा। क्लैरिफिकेशन रिलेटिंग टू द प्रोविजंस कंटेन इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन, सबसेक्शन और क्लॉजेस। Clarification, 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 clarification relating to the provisions contained in the respective section, subsection and clauses. Understand? क्लैरिफिकेशन याद देखो तीन ही शब्द है, एग्जेम्पशंस और कंडीशंस तो मैंने प्रोविजो में बता दी, और ये जो क्लैरिफिकेशन वाली बात बताई है मैंने एक्सप्लेनेशन में तुमको बता दिया। ठीक है? एग्जांपल देखो, चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। एग्जांपल देखो यहाँ पर कि सेक्शन 80 जीजीबी, सेक्शन 80 जीजीबी, याद रखना कौन सा सेक्शन है? 80 जीजीबी और 80 जीजीसी, दो सेक्शन है, याद कर लो इनको। कौन कौन सा है? सेक्शन 80 जीजीबी, 80 जीजीबी और जीजीसी। ए भगवान, दो सेक्शन है। कौन से हैं? एक सेक्शन 80 जीजीबी है, एक सेक्शन 80 जीजीसी है। सेक्शन जीजीबी और जीजीसी प्रोवाइड्स फॉर द डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। इन दोनों में किस चीज के बारे में बात हो रही है? डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में बात हो रही है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द कंपनीज एंड अदर पर्सन रिस्पेक्टिव टू द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन एन इलेक्टोरल ट्रस्ट। ध्यान से समझना,
80 GGB और 80 GGB, 80 GGB और 80 GGC किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि भैया तुमको डिडक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी तुमको? डिडक्शन मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम से तुमको क्या मिलने वाली है भैया? डिडक्शन मिलने वाली है। समझ में आया? कब मिलेगी? इन रिस्पेक्ट ऑफ, जब तुम कंट्रीब्यूशन करोगे। किसके द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाएगा? मेड बाय द कंपनी। कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा करा जाएगा? कंपनीज के द्वारा करा जाएगा या फिर अदर पर्सन के द्वारा करा जाएगा। कहां पर करोगे? पॉलिटिकल पार्टीज पर करोगे या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट में करोगे। समझ में आई बात? आ रही है समझ में? आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, अब हम प्रोविजो को समझते हैं। द प्रोविजो टू द सेक्शन 80 GGB एंड 80 GGC। प्रोविजो क्या बताया था अभी? प्रोविजो यहाँ पे देखो, एग्जेम्पशंस या फिर कंडीशंस, एग्जेम्पशंस या फिर कंडीशंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या चीज है। तो जो प्रोविजो था, किसका? सेक्शन 80 GGB और 80 GGC का। प्रोविजो देखो, प्रोविजो में दो चीजें बताई मैंने, तुम्हें लिख देता हूँ। एग्जेम्पशंस और कंडीशंस क्या है? EXC, EPTIONS, एग्जेम्पशंस और कंडीशंस, ठीक है। इनको यहाँ से काट के इसको मैं लेके जाता हूँ। ये लो, अब ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, किस प्रोविजो का मतलब मैंने बताया था, एग्जेम्पशंस और कंडीशन। तो जो प्रोविजो है किसका? सेक्शन 80 GGB का और 80 GGC का। तो जो प्रोविजो है, तो जो प्रोविजो है किसका? सेक्शन 80 GGB और 80 GGC का। वो क्या बताता है? प्रोवाइड्स दैट नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दोज सेक्शन, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूशन बाय कैश टू पॉलिटिकल पार्टीज और एनी इलेक्टोरल ट्रस्ट। कुछ कंडीशन भी है, कुछ प्रोविजो भी है। यहाँ पे प्रोविजो में दो चीज आती है, एग्जेम्पशंस, सॉरी एक्सेप्शंस और कंडीशंस, ठीक है। तो देखो, जो प्रोविजो के बारे में बात हो रही है कि सेक्शन 80 GGB और जीजीसी की जो क्या बताते हैं, जो उसका जो प्रोविजो है वो हमको क्या बात बोलता है? प्रोवाइडेड नो डिडक्शन, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? शैल बी अलाउड अंडर दीज सेक्शन, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दीज सेक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय कैश। अगर तुमने कंट्रीब्यूशन करा, किसमें भैया? कैश में करा। किसको भैया? पॉलिटिकल पार्टी को या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तब डिडक्शन मत मांगना, तब डिडक्शन मत मांगना, ठीक है। Thus the proviso to these sections spell out the circumstances when deduction would not be available there under in respect of contribution made। समझ में आया? तो जो प्रोविजोज हैं, तो जो प्रोविजोज है सेक्शन के, वो किसके बारे में बात करें? स्पेल आउट किसके बारे में बात करें? सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करें, जब डिडक्शन वुड नॉट बी अवेलेबल, जब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। वुड नॉट बी अवेलेबल, जब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। भाई बात समझ में? व्हेन डिडक्शन वुड नॉट बी अवेलेबल देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड। समझ में आ गई बात? तो प्रोविजो समझ में आया, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को भी समझो। एक्सप्लेनेशन देखो किसका? 80 GGC का। प्रोवाइड्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन 80 GGB और 80 GGC में, वहां पे पॉलिटिकल पार्टी को समझा रखा है। किसको समझा रखा है? पॉलिटिकल पार्टी को। एक्सप्लेनेशन समझ लेना, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी को क्या समझा रखा है? मीन्स अ पॉलिटिकल पार्टी मीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। तो पॉलिटिकल पार्टी को भैया डिफाइन करा गया है। पॉलिटिकल पार्टी को क्या करा गया? डिफाइन करा गया। एक्सप्लेनेशन समझना, द एक्सप्लेनेशन किसका भैया? 80 GGC का जो एक्सप्लेनेशन है, उसमें एक चीज बताई गई कि भैया कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है? किसका? पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है? किसका भैया? पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है? तो वो कह रहे हैं कि भैया पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है कि मीन्स अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड होनी चाहिए किस पे? अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। ये कब आया समझ में? ये इसका क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। समझ में आया? Thus, the explanation clarifies the political party has to be registered political party। explanation पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि भैया पॉलिटिकल पार्टी से काम नहीं चलेगा, रजिस्टर्ड पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। कौन सी? रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। कौन सी? रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। समझ में आ गया? और कहां पर होनी चाहिए? देखो, मीन्स अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A, सेक्शन 29A ऑफ द RPA, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951। इनकम टैक्स एक्ट की बात नहीं हो रही है, सेक्शन 29A
of the Representations of the Peoples Act 1951. Thus, the explanation clarify the political party has to be the registered political party. आया इतनी बात समझ में? ठीक है। अच्छा, द इनकम टैक्स एक्ट 1961, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडरगोज चेंजेस एवरी ईयर। इनकम टैक्स एक्ट में जो 1961 है, वहां पर भैया हर एक साल चेंजेस होते रहते हैं, कुछ एडिशन भी होते रहते हैं और कुछ सब्सटीट्यूशंस भी हो सकते हैं। एडिशंस भी हो सकते हैं और सब्सटीट्यूशंस भी हो सकते हैं, और ये होंगे कैसे? ब्रॉट इन द एनुअल फाइनेंस एक्ट। इसके द्वारा ध्यान से समझना, इनकम टैक्स एक्ट में दो चीजें हैं कि भैया वहां पे चेंज होते रहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में चेंज होते रहेंगे भैया, कब? हर एक साल वहां पर चेंज होते रहेंगे। एडिशंस भी हो सकते हैं और सब्सटीट्यूशंस भी हो सकते हैं। दो वर्ड है यहाँ पर, एडिशंस भी हो सकते हैं और सब्सटीट्यूशंस भी हो सकते हैं। कैसे होंगे? तो यहाँ पे लिखा हो ब्रॉट इन बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट, ब्रॉट इन बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट, ब्रॉट इन बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। जो पास कहाँ पर होगा? पास बाय पार्लियामेंट। कहाँ पर होगा? पार्लियामेंट पर पास होगा। समझ में आई? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भैया क्या हो सकते हैं? चेंजेस हो सकते हैं। कब भैया? हर एक साल चेंज होते हैं। उसमें कुछ एडिशन हो सकते हैं, सब्सटीट्यूशन हो सकते हैं, जो कैसे होंगे? ब्रॉट इन बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट, ब्रॉट इन बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। और किसके द्वारा पास होगा? पार्लियामेंट के द्वारा जो पास होता है, पास बाय द पार्लियामेंट। समझ में आया? Sometimes the Income Tax Act 1961, sometimes the Income Tax Act 1961 is also amended through the other legislation, जैसे कि टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट। ध्यान से एक बात समझना कि भैया कभी कभी वो बोले जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो अमेंडेड हो सकता है। कैसे? थ्रू अदर लेजिस्लेशन, जैसे कि हमने बोला टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भी अमेंड किया जा सकता है। समझ में आया? कभी कभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 अमेंड हो सकता है। कैसे? अदर लेजिस्लेशंस के थ्रू भी, जैसे कि टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भी अमेंड हो सकता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे किस पे? फाइनेंस एक्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है।